नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय चतुर्वेदी सर, वाइस चेयरमैन स्ट्राइव। But that's a very simple word. I would like to little bit elaborate on his profile, I would say. It is an honor to have him once again. Major General Chaturvedi sir is a mechanical engineer, IIT Chennai. He's done his MMS from Osmania University, Hyderabad, MPhil from University of Madras. He's Director General, he was Director General, College of Engineering, Roorkee. Apart from that, he's been associated with many think tanks nationally and internationally. Vision India Foundation, Eco Development Foundation, Vimarsh in Lucknow, and many others. Sir has written many books. He's authored many books like Role of Pakistan in India's Energy Security, Nuclear Energy in India's Energy Security Matrix. Sir is a big sportsman. He loves sports, and he is also won many awards and certificates for venturing into many sports activities. He's been also awarded the President's Medal for highest peacetime meritorious services. Also, there are many awards which I think I would not I would let go of, because sir की CV बहुत बड़ी है, जितनी मेरी उम्र नहीं है so उससे बड़ी sir की CV, I would put it in that simple words. And thank you so much, sir, for joining us once again. It was a wonderful session in the first time, and I'm looking forward for a very enlightened session for the second time also. Sir, India's internal security, the one we did last time, I received a lot of love from people, lot of respect, and people really loved that episode. Now, when we are talking about the second episode, it's kind of a follow up on the first one only. हम जो देख रहे हैं वो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी वाले पैरामीटर्स की। जब हम बात करते हैं, अगर हम 60s 70s 80s की बात करते हैं, तो बॉम्ब अटैक्स बहुत कॉमन थे। मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले एक फीलिंग होती थी ऐसा ना हो कि बॉम्ब, स्पेशली दिवाली, दशहरा, होली, इन सारे मैटर्स के टाइम पे टेररिस्ट अटैक्स बहुत कॉमन थे। बॉर्डर एरियाज पे हर तीसरे दिन पाकिस्तान कुछ ना कुछ फायरिंग करता था। बट अब हम एक पर्सपेक्टिव, एक दूसरा चेंज देख रहे हैं। उतना ही इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं, उतना ही इम्पैक्ट है, बट फॉर्म बदल गया है। अब हम देखते हैं कोई कन्हैया कुमार का गला पकड़ कर रेत देता है, लोन वुल्फ अटैक्स ज्यादा है, कम्युनलाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है कि हम गली मोहल्लों में भी बात नहीं कर सकते हैं। इट इज गोइंग सो दैट डीप। सो एक चेंज हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी की। जब हम बात करते हैं फॉर्म में, अटैक में, भारत के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल, रीजनल एंड विद इन द कंट्री जो फोर्सेस हैं, वो भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। With that introduction, I think that, sir, I'll pass the platform. We'll start with China because China is playing one of the biggest roles in India's internal security as of now. A very warm welcome once again, sir. Ji. Thank you for all those good words. Actually, when we talk of security, the external security and internal security both are equally important. And for a diverse country like India, where fault lines are quite deep, but over a period of time they have been covered with sands of time, and they can be with a little scratch they can be widened, and that is what is there's something called Thucydides trap. In history it is there that when a power starts growing, the existing powers. Sir, thoda Hindi. Audience Hindi. Ji, sir. So, sir, my audience is Hindi. Ji. Sorry? Sir, थोड़ा हिंदी ज्यादा यूज करें प्लीज, मेरी ऑडियंस हिंदी है जी। अच्छा, तो जो Thucydides ट्रैप है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो एक पावर जो बड़ी होने लगती है, उसको नीचा करने के लिए कोशिश ये होती है, जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं वो उसको दबाने की कोशिश करती है, जिससे कि ये नई पावर ना आ सके। तो पास्ट में भी यही हुआ। ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरी यूरोपियन पावर्स को दबा के रखा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुआ तो एक डिटेंट आया, कैसे? सोवियत यूनियन वर्सेस यूएस, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक हो गया, एक फ्री वर्ल्ड, सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड। एंड पोस्ट 91
सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो एक सिंगल पावर आ गई, सुपर पावर अमेरिका. नाउ दिस अमेरिका इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये थोड़ा डिक्लाइन में है. लेकिन क्या है कि कुछ नई पावर्स बढ़ रही हैं. जैसे चाइना ने उसको चैलेंज किया तो पेंडेमिक हुई. पेंडेमिक के बाद एक उसके पहले ट्रंप ने उनके अगेंस्ट एक ट्रेड वॉर भी की, जिसकी वजह से किसी तरीके से चाइना को डाउन किया जाए. आज हिंदुस्तान पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है. जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और हमारा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम भी दिन पे दिन तरक्की करता जा रहा है. कि देखिए कि अगर आप पहले हमारे करीब 4-5 हजार करोड़ का होता था, अभी पिछले साल 21,000 करोड़ से ज्यादा का हमारा एक्सपोर्ट हुआ. करीब 83 कंट्रियों को हमारा जो है एक्सपोर्ट अभी होने लगा है. तो हम जो है इन देशों के ऊपर जिम्मेदार. तो अब इस सिचुएशन में अमेरिका का प्रयास है और चाइना का प्रयास होगा कि हिंदुस्तान तरक्की ना करे. और ये उसी तरह चाइना चाहेगा कि हम अपने आसपास में उलझे रहें एंड अमेरिका चाहेगा कि हम किसी तरह उन पर डिपेंडेंट रहें. आपने जो एक जहां से शुरू किया था कि एक जो ट्रेंड एक चेंज हुआ है नेशनल सिक्योरिटी में, एक उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पहले क्या होता था कि बड़ी फॉर्मल लड़ाइयां होती थी कि भाई एक ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, वो आपको आपके अंदर कोशिश कर रहा. आज की तारीख में ये स्मॉल टीम वर्क होने लगा है क्योंकि ये बहुत आसानी से छुपाए जा सकते हैं. तो इसलिए आपने एक हरकत की और निकल लिए, जिसकी वजह से क्योंकि जो कम्युनल एक विश्वास है दोनों कम्युनिटीज में, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. जिसकी वजह से वो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा आपने झटका दिया और ये दंगे में बदल जाए. तो इसको करने की कोशिश, दैट इज वाई ये जैसे कहा जाए कि कन्हैया लाल को मार दिया गया या कहीं किसी और को मार दिया गया, तो ये चीजें जो है इस तरह से हो रही हैं. तो जब हम इसको पूरी को एनालिसिस करते हैं तो हमारी 3-4 चीजें बहुत पहले तो अभी देखें कि हो क्या रहा है देश में, फिर क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है. ये 3 प्रश्न आपके दिमाग में होंगे. आज की तारीख में अगर आप गौर करें तो मणिपुर एक बहुत मेजर इशू. करीब 89 का एक डेटा है कि पर दिन करीब 20 किलो हीरोइन पैदा की जा रही है. 20 किलो हीरोइन. दूसरा जो अभी इसका जो अगर रुपए के टर्म में बोला जाए तो पिछले साल का फिगर है करीब 1261 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. ये पैसा अभी क्या है कि जो गोल्डन क्रिसेंट है, जो अफगानिस्तान वाला इलाका है जहाँ की पॉपी पैदा होती थी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई. तो ज्यादा फसल कहाँ हो रही है? गोल्डन ट्रायंगल में, जैसे दैट इज म्यांमार, थाईलैंड, उस एरिया में, और ये हमारे मणिपुर एरिया में. ना ये जो पॉपी ग्रो हो रही है, ये इसके जो ट्रेडिंग हो रही है, अभी क्या हुआ 2017 से जो बीरेन सिंह है उन्होंने कोशिश की कि इसको हम खत्म करें. उन्होंने जिसको खत्म करने की जब कोशिश की तो एज ए रिजल्ट लोगों के पेट में दर्द होने लगा. तो आज की तारीख में ये जो है, ये पॉपी का ये जो सारा कुछ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो जिसकी वजह से इंसर्जेंसी वहां पे है, उसमें बहुत कुछ बड़ा रोल ये ड्रग ट्रैफिकिंग का है. अच्छा, अब अगली चीज वहां क्या है कि जो एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया पिछले साल कि भाई मैतीस को भी जनजाति बना दिया जाए. बड़ी चीज हुई है कि इस साल उन्होंने फरवरी में उस ऑर्डर को चेंज कर दिया, उस पैरा को जिसमें उन्होंने कहा था जनजाति वाला. लेकिन ये तो आग तो लग गई. पिछले 9 साल से ये बंद था. तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? एक प्रश्न आता है कि 9 साल से कुकी माइतीस की कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही थी. एक हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, उससे शुरू हो जाता है. और आप देखिए पिछले 2-3 साल में चाइना का क्या हो रहा है, जो आपने एक प्रश्न किया था. चाइना जो है अभी कोशिश कर रहा है कि हम इसको फिर से जगाएं. तो ये जो है, अच्छा इसमें क्या होता है कि अभी हाल में क्या हुआ है कि ड्रोन, असॉल्ट स्नाइपर राइफल्स, M5 असॉल्ट राइफल्स, AK-47 इंसास पकड़ी गई. तो ये कहां से आ रही हैं? तो या तो ये आ रही हैं कहां से कि या तो ये ड्रग मनी से खरीदी जा रही हैं या इसको चाइना दे रहा है. तो ये चीजें जो हैं, ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इस पे बहुत ज्यादा है मणिपुर पे. ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए. और आप देखिए कि एक आर्टिकल 371C भी है
जो कि 27वें अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था कि एक बातचीत होनी चाहिए। अभी बीरेन सिंह को गवर्नमेंट के गले में, जिसको कहते हैं ना कि सांप चशूदर जैसी हालत हो गई है, वो मैती अगर आप उसको 356 लगा दोगे तो आप गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी कि मैती के खिलाफ हो जाएंगे। 355 उन्होंने ऑलरेडी इन्वोक कर रखी है, आसपा ऑलरेडी इन्वोक्ड है। तो इसमें अगर चाहेगी गवर्नमेंट तो ये इसको कंट्रोल कर सकती है। मतलब आप देखिए पिछले साल करीब 36,000 ट्रूप्स थे वहां पे, 36,000 में से 5,000 इस साल अप्रैल में हटा दिए गए। क्यों भाई हटा दिए गए? दूसरा, जो ये नया वेपन सिस्टम आया, पुलिस तो बिल्कुल केपेबल नहीं है इनको हैंडल करने के लिए। सीएपीएफ, क्या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है? अगर है, नहीं है तो उस पर करना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि मणिपुर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी हमको लानी पड़ेगी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। और चाइना का जैसे इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया वो है ही है। तो ये तो मणिपुर के बारे में ये चीज हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रश्नों में मैं बताऊंगा। दूसरा, 2-3 चीजें और साइमल्टेनियसली हो रही हैं। इस देश में एक डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। अगर आप गौर से देखें कि आज की तारीख में 11 जिले जो हैं असम में, वो मुस्लिम मेजोरिटी जिले हो गए हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा दोनों बिल्कुल मुस्लिम मेजोरिटी हैं। नॉर्थ दिनाजपुर जो है वो हिंदी बिल्कुल एट पार है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। जो वहां पे अगर ये फिगर आप देखें तो हिंदू घट के 71% रह गए, मुस्लिम बढ़ के 27% हो गए। असम में आज की तारीख में मुस्लिम्स ऑलमोस्ट 41% हुए जा रहे हैं। तो ये चीज जो है, अच्छा ये यही नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखिए बांग्लादेश के साथ साथ वाला इलाका है। और इससे नुकसान क्या हो सकता है कि हमारे किशनगंज एरिया में नुकसान हो सकता है, जहाँ की 68% ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन है बाय द वे। और वो जो है नेपाल और बांग्लादेश में सिर्फ 27 किलोमीटर का एक पैसेज है जिसको चिकन स्नेक बोलते हैं। आप अगर आ जाइए और फर्दर अंदर, तो आपके यहाँ जो देवभूमि जिसको आप बोलते हैं उत्तराखंड, वहां पॉपुलेशन इन्वर्शन होने लगा। वहां पे एकदम से पिछले 10 साल के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी। और सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रही है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ना। हरिद्वार का इम्प्लीकेशन क्या होगा? वो आपकी देवभूमि है। वहां अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका इम्प्लीकेशन पूरे देश पे होगा। तो ये एक सोची समझी चाल के हिसाब से ये किया जा रहा है। आप हिमाचल आइए, आप सांजुली मस्जिद का आपने पिछले दिनों केस देखा ही है। वहां पे भी पॉपुलेशन इन्वर्जन, वहां सिर्फ 95% अभी भी हिंदू हैं, लेकिन जो मुस्लिम ग्रोथ है वो बढ़ने लगी है। 0.96% से वो करीब 1.16% हो गया है। तो वहां पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। और वो भी कहाँ बढ़ रही है? शिमला कैपिटल में। अगर आप फर्दर आप जाएंगे, राजस्थान में बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। जम्मू एरिया में साउथ ऑफ पीर पंजाल चेंज हो रहा है। तो ये चीजें एक सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये हम लोगों को इसके लिए बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया, एक फरतुल्ला घौरी करके एक मौलवी है पाकिस्तान में, उसने कहा कि हम लोगों को छोटे छोटे काम करने चाहिए जिससे कि चलते रहने चाहिए हमें स्लीपर सेल्स को जाके। तो उन्होंने क्या किया कि रेलवे में जो है सबोटाज करने की कोशिश की। आप देखिए पिछले 2 महीने में कानपुर अलोन में तीसरा इंसिडेंट हुआ है। तो ये चीजें अगर कल को जो जो हुआ है कि वो उन्होंने एक एलपीजी सिलेंडर रखा था, अगर मान लीजिए वो भड़ाका हो जाता, 1200-1400 आदमी मरते, तो क्या ये गोधरा जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती थी? तो ये चीजें हम लोगों को गौर करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इसमें एक और पॉइंट जो है, जो सबवर्शन जो है, ये बहुत ढंग से हो रहा है। एक सबवर्शन, दिमाग का सबवर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए चाइना जो है उन्होंने 6G वॉरफेयर शुरू किया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, आपको मालूम है इलेक्शन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक नई वेव चलाई जा रही है जिससे कि सोसाइटी में डिवीजन पैदा किया जाए। कल तक आप देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। असम राइफल्स, असम रेजिमेंट, ये दो का मैं उदाहरण देता हूँ। असम राइफल्स में कुकी भी हैं, मैतीस भी हैं, नागाज भी हैं, सब प्रेम मोहब्बत से रहते। असम रेजिमेंट में भी यही हाल है। लेकिन जहां ये घर पे जाते हैं तो फिर क्यों? क्योंकि ये जो है इनका एक कोशिश की जा रही है कि इनके दिमाग को
कैप्चर किया जाए। तो ये 6G वॉरफेयर का है जिसमें कि नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से हम लोगों का दिमाग बदला जाए। तो ये एक प्रयास ये चाइना की तरफ से एक और चल रहा है। एंड इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की प्रगति का एक कारण क्या है कि अगर आप गौर करो कि जब से हम आजाद हुए हैं हम एक देश बन गए। तो हर लड़ाई में चाहे कितनी भी मुसीबत आई हम सब एक साथ हो जाते थे। आज नेशनल कंसेंसस नहीं है। कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट का एक जो जिसको कहा जाए कि एक रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये एक पार्लियामेंट का। लेकिन आज की तारीख में 370 पर लड़ाई होने लगती है। तो ये जो कोशिश हो रही है कि देश को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एक बाल्कनाइजेशन का एक प्लान बनाया गया था लॉर्ड वेबल ने, जो लास्ट बट वन वॉइसरॉय थे, जिसको कि माउंटबेटन ने बढ़ाया। थैंक गॉड नेहरू जी ने उसको, जो उन्होंने गलती से नेहरू जी से उसके बारे में बात कर ली, नेहरू जी ने उनको झाड़ मारी और उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन आज प्रयास हो रहा है कि देश को जाति, धर्म, लैंग्वेज, इस पे फिर से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बैल्कनाइजेशन ये एक बहुत मेजर इशू है। अच्छा, इसमें आप जो मैंने बोला कि ये सिर्फ चाइना का ही हाथ नहीं है। आज अमेरिका भी एक तरफ तो आपको हथियार देने की बात करता है, वो है कौन, पेंटागन, आपसे सोसा भी करता है, आपसे लेमुआ भी साइन करता है, सारा कुछ करता है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो आपको 404 नहीं देगा, आपको 414 नहीं देगा, जो इंजन है। तो वो जो कोशिश आपके यहाँ चल रही है, बांग्लादेश में भी बहुत कुछ जिसको सुनने में आता है कि चाहे वो डोनाल्ड लू हो या पीटर हास ने जो किया वहां पे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों भाई, आप डेमोक्रेसी के बड़े बड़े नुमाइंदे हो। आपने मोसादिक को कैसे ईरान में उड़ाया था, वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। निकरागुआ में आपने क्या किया। आपकी दोस्ती किससे होती है, जियाउल हक से। आपकी दोस्ती किससे होती है, परवेज मुशर्रफ से। तो आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो। लेकिन अमेरिका एक कोशिश करता जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष की ग्रोथ उसको लग रहा है कल को एक नया चैलेंजर पैदा हो रहा है। तो उसकी कोशिश रहेगी कि भारत अपने एरिया में ही, चीन और पाकिस्तान, अमेरिका दोनों की, कि अपने एरिया में हम उलझे रहें। और इसमें वो रीजनली में उलझाए रखने के लिए हमको वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ क्या आवाज उठने लगी, पिछले 3 साल से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी कहने लगे कि वो जो एक बेस बन रहा है निकोबार में, वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। क्यों भाई, जब बनना शुरू हुआ था तब तुम्हारे लोगों के मुंह में दही जमा हुआ, तो उनके बहुत सारे एजेंट। आप एक चीज गायत्री जी याद रखिएगा कि किले में कब्जा तभी हुआ जब अंदर से दरवाजा खोला गया। तो हमारे आपके दिमागों को जो है, जो हैक करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत बड़ी हैकिंग है। और इस देश को कहीं ना कहीं इस चीज को याद करके एक साथ आने की जरूरत है कि हमारी आपस की समस्याएं हो सकती है, हम आपस में बात करें, उनको सुलझाएं। लेकिन जब विदेशी कोई हो तो हम लोगों को एक होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब हमें करना क्या चाहिए। पहली चीज मेरे हिसाब से एक नई मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत है, इंटरनल सिक्योरिटी की, एक अलग से होना चाहिए। ये होम मिनिस्ट्री पे इतने काम है, चाहे वो सेंसस हो, चाहे ये हो, और अमित शाह जी के पास तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है। तो होम मिनिस्ट्री के पास जो काम है उसमें ये नहीं साधेगा। तो अभी हमको फिर से एक बार फिर से, जो कि राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने किया था, इंटरनल सिक्योरिटी की एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई थी, वो बननी चाहिए। दूसरा, चाहे जो पुलिस का अपग्रेडेशन होने की जरूरत है, मोटिवेशनल लेवल पे भी और इक्विपमेंट वाइज भी और ट्रेनिंग वाइज भी। सीएपीएफ को अब ये नए जो चैलेंज आ रहे हैं, चाहे वो असॉल्ट राइफल का हो, चाहे ड्रोन का हो, चाहे पंजाब में भी तो वही हो रहा है। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए क्या हमारे फोर्सेस रेडी हैं, नहीं है, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसपे कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, ये एनडीपीएस एक्ट है जो कि ड्रग के अगेंस्ट है। पंजाब के अंदर उसने नुकसान किया, मणिपुर में भी कर रहा है। तो हमको ये एनडीपीएस एक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और चाहे कोई कितना बड़ा हो छोटा हो, उसके अगेंस्ट एक्शन होना ही चाहिए। तीसरी चीज जो आरएम, ये मतलब जैसे कि निज्जर वगैरह को किया गया था, तो एक भय पैदा किया गया था कि जो हमारे देश के
एनिमिकल फोर्सेस हैं, तो ये अगर मोसाद कर सकता है, CIA कर सकता है, जो फेडरल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं रशिया की, वो कर सकती है, तो हमें कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम इसमें एक्शन करते रहें। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक है, जो जितने ट्रबल क्रिएटेड कंट्रीज हैं, उनसे हमें पीसफुल नहीं, हम लोगों को जो जो भी हमारे खिलाफ एक, देखिए लड़ाई का जो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि अपने दुश्मनों को डिवाइड करके रखो, तो हमको आज की तारीख में शायद अमेरिका से दोस्ती करके चीन को डील करना चाहिए, बाद में चीन को डील करेंगे, चीन से डील करेंगे। तो ये जो एक डिप्लोमेसी का एक महकमा है, इस पर बहुत जोर होना चाहिए, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक क्वाइट डिप्लोमेसी, जैसे कि हमने मालदीव्स को अपने साथ कर लिया या श्रीलंका को अपने साथ कर लिया, क्योंकि चाइना कोशिश करता रहेगा, पाकिस्तानी नहीं। आज उसने बांग्लादेश, अमेरिका और चाइना ने मिलकर करा दिया। तो आपको ये चीजों के खिलाफ तैयार रहना पड़ेगा। और आप देखिए कि जो ये बांग्लादेश एक नया इक्वेशन में आ गया है, ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सेंचुरी मिलेगी। जो मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इनको सेंचुरी मिलने लगेगी। पहले वो यहाँ जाते थे, लेकिन शेख हसीना ने उनको नहीं आने दिया, तो अब फिर से वो शुरू हो जाएगा। तो ये इस पे हम लोगों को जोर देने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक जो चिन आर्मी है, उनके बेसिस पे म्यांमार में हमें करनी चाहिए, क्योंकि तभी जो ये जो सप्लाई चेन है हथियारों की, तभी टूटेगी कि एक उनके ऊपर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल एक कंसेंसस बिल्ड होने की बहुत जरूरत है देश के अंदर, कि आपस में हम लोग किस तरीके से एक साथ रह सकते हैं। मैं यहाँ अभी रुकूंगा, अगर अब आप प्रश्न पूछें तो। ये जो अभी आपने स्पेशली बताया अपने पॉलिटिकल कंसेंसस को लेकर, अगर आप आज से 15 साल पहले देखें, तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती थी, जब भी भारत या इंडिया की बात होती थी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, नो मैटर विच आइडियोलॉजी दे यूज्ड टू फॉलो, सब इकट्ठे खड़े हो जाते थे। अभी जैसे आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड पे बात कर रहे थे, अब वहां पे एक बहुत मैं बड़ा आपको डिफरेंस उदाहरण है। देता हूँ, नरसिम्हा राव जी ने जो भेजा था UN जिनीवा में, जो ह्यूमन राइट वायलेशन का पाकिस्तान ने आपके ऊपर चार्ज लगाया था, तो उसके अगेंस्ट जब पैरवी करने के लिए जो टीम गई थी, उसमें कौन गया था? उसमें अटल बिहारी वाजपेयी लीडर थे, सलमान खुर्शीद जो कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उसके मेंबर थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो ये एक मैसेज गया दुनिया में कि भाई हम एक हैं। तो ये चीज मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो विभिन्न पार्टियों की हैं, इनका एक जिसको कहते हैं कि एक माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, कि भाई पॉलिटिकल पावर आ जाएगी यार, पॉलिटिकल पावर तुम्हारी आएगी नहीं आएगी वो एक अलग बात है, लेकिन देश से एक साथ हो जाओ। और इसमें मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का बहुत बड़ा रोल है इस पॉलिटिकल कंसेंसस को बनाने के लिए। ट्रू। सर, यहाँ पर मैं आपको वापस मणिपुर पर लेकर जाना चाहूंगी। हमने काफी सारे कॉन्टूर्स के बारे में बात की, इंटरनल सिक्योरिटी के। जो आम जनता है, वो बार बार दो चीजें बोल रही है मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर वेस्ट बंगाल को लेकर तो लगातार पिछले कई सालों से बात हो रही है कि क्यों नहीं वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 क्यों नहीं लगा देते हैं, या फिर आर्मी को क्यों नहीं भेज देते, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या मणिपुर हो। अभी जी सर। देखिए, ऐसा है कि मणिपुर में आसपा ऑलरेडी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, और जिसकी वजह से अगर वो चाहे तो आर्मी इसमें एक्शन ले सकती है, एंड इसको इन्वोक करने के लिए किया जा सकता है वहां पे। लेकिन वेस्ट बंगाल आसपास से कवर्ड नहीं है। आर्मी को स्पेशली जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एड टू सिविल अथॉरिटी, उसमें जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक आर्मी वेस्ट बंगाल में नहीं जा सकती। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा, आर्टिकल 356 का इन्वोकेशन मेरे हिसाब से, जैसा कि देखिए वहां की जो जो नहीं कर रही है, ये मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। एक किसी स्टेज पे आके जिसको कहते हैं कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो अगर मैतीज और कुकीज का ये चल रहा है, हालांकि इसका एक ऑफशूट ये होगा कि मैतीज थोड़े से आपके खिलाफ हो जाएंगे, सो व्हाट, लाइफ
में ये कुछ कठोर कदम लेने पड़ते हैं तो ये होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है, शक शुबा नहीं है कि 356 इन्वोक होना चाहिए। लेकिन आप अगर गौर करो कि गवर्नमेंट क्यों हेजिटेंट है, दुनिया भर में एक ये मैसेज चला गया है और बाहर वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटरशिप है, विच इज फार फ्रॉम ट्रूथ। पिछले 10 साल में एक भी 356 इन्वोकेशन नहीं हुआ, जबकि और उसके पहले कई बार हुआ, इंदिरा जी के समय में हुआ, राजीव जी के समय में हुआ, काफी कुछ लगाए गए हैं। और क्यों नहीं लगाया जाए? अगर ये 356 किसी ने दिया है जिसमें प्रेसिडेंट रूल होता है तो व्हाई नॉट। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको लगता है कि अगर मैंने किया तो मैतीस खिलाफ हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमको वोट नहीं मिलेंगे। बंगाल में अगर ये लगा दिया तो भद्रलोक हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमको वोट नहीं मिलेंगे। अरे भाई, अगर ठीक ठाक सब चला तो कल को लोग भी तो आपको आशीर्वाद देंगे। आज बुलडोजर पॉलिसी सभी लोग उसको हाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं कि वो तो विदेश में लोग कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ होना चाहिए। प्रो पैलेस्टीन या प्रो हमास प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, दैट्स द पॉइंट टू नो। कॉपी पेस्ट हाँ, मॉडल तो चल गया योगी जी का। मेरे हिसाब से ये मुफीद टाइम है कि कम से कम मणिपुर डेफिनेटली 356 डिजर्व करता है। एंड अगर जो, क्योंकि कल का भी जो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का आया है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि वो समझ पा रही हैं ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। जब वो ये कहते हैं कि अब तो वो जिसको कहते हैं फेस्टिवल टाइम है तो हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल इशू है जिसकी वजह से पूरा ये वहां पे झमेला है, उस पर तो वो एड्रेस नहीं कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी देयर इज अ केस कि जिसके लिए, लेकिन उसको कैसे गवर्नमेंट लाएगी, कैसे लग सकता है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। इसके बारे में एज ए सिपाही मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें गवर्नेंस के लिए जरूरी है। जी सर, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ये इस वक्त बहुत नीड ऑफ द आवर है, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे थे, बिकॉज हम वी इनफैक्ट दिस इज आई वाज आल्सो सरप्राइज व्हेन आई गॉट टू नो कि चाइना का जो डिफेंस बजट है 70% goes to the internal affairs, law and order and things like that, and the 30% is for the external चाइना defense में border. गायत्री जी एक आपको कुछ मजेदार चीजें बताते हैं। एक हान हार्टलैंड है और एक जो है उसके पेरिफेरल है। पेरिफेरल क्या है? तिब्बत। तिब्बत को उन्होंने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी तिब्बत बिल्कुल तिब्बतन कल्चर अलग है। एक मेरी लेटेस्ट किताब भी है इसके ऊपर, एक तिब्बत के ऊपर। दूसरा उग्यूर मुस्लिम्स जो ईस्ट तुर्किस्तान है वो बिल्कुल अलग है, मंचूज अलग हैं, मंगोल्स अलग हैं। तो ये जो वहां पे डिवाइड है, इसलिए उनको जरूरी है कि एक इंटरनल मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिससे चाइना को वो यूनिफाइड रख सकें। क्योंकि अगर चाइना की क्या स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत बड़ा देश है। तो बहुत बड़ा देश तो एक मिनट में छोटा हो जाएगा अगर सिर्फ हार्टलैंड रह गया। तो ये जरूरी ये है कि वो, इसलिए इंटरनल पे उनका खर्चा बहुत होता है। और हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ वो उसको डिफेंस बजट में नहीं आता, वो एमएचए के बजट में आता है। लेकिन क्या हम लोग आर वी कीपिंग पेस विद द टाइम्स? दैट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन कि आपके सीएपीएफ आर दे प्रिपेयर टू टेक अप से ड्रोन वॉरफेयर? कल को इससे आगे होगा, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स आने लगेंगे कि आप कहाँ किस हवा में घूम रहे हो, साइबर के होने लगेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप चाइना का अगर आप देखें, उसके बॉर्डर तक उसने जो है इतना अच्छा टेलीकॉम सिस्टम बना लिया है और उसका जो 5G नेटवर्क इतना है कि वो आपको बम्बार्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, जो आपका दिमाग बदल रहा है, आपका दिमाग बदले जा रहा है। आपके देश में बहुत से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो कि सरकार के ऊपर प्रश्न करने लगे हैं। क्यों? सरकार के देश के ऊपर प्रश्न करने लगे हैं। सरकार तो मतलब आनी जानी है, आज एक सरकार है, कल हो सकता है दूसरी कोई सरकार आ जाए। तो लेकिन क्या है कि ये जो है, आपको एक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक फिर से एक रीलुक की जरूरत है, एक नई मिनिस्ट्री होनी चाहिए। और पुलिस में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि डंडाधारी पुलिस से आगे बढ़ने की जरूरत है।
पुलिस की बहुत स्ट्रेंथ होती है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, लेकिन मोटिवेशनल लेवल बहुत वीक है। मोटिवेशनल लेवल क्योंकि वो बंदे कम है और उनको सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? जहाँ उनको सपोर्ट मिलने लगेगा, क्योंकि आज उसने किसी को पकड़ा, आज उसको आप देखो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो कि भैया उसके ऊपर ये चार्ज, वो चार्ज, वो कहता है यार मुझे पागल हूँ मैं जो इसमें लड़ूँ? अरे भाई तुम्हें जो करना हो करो, मैं अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहा हूँ। तो उनको ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड इक्विपमेंट सो दैट दे कैन लिवरेज टेक्नोलॉजी, वो पुलिस एंड सीएपीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पे बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और सर हमारी आपने पुलिस की बात की, पुलिस को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हताश तो लोकल पॉलिटिशियंस ही कर देते हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे आर रियली डिमोटिवेटेड। उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श है। आप देखिए ना 45-50 डिग्री में जब हम एसी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, दे स्टैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। आई हैव सिंपैथीज विद देम सर। सीरियसली देयर आप वर्किंग कंडीशंस नीड टू बी बेटर नाउ। इसको मत देखिए, आप और चीज़ें देखिए। वो बच्चा, उसकी पोस्टिंग यहाँ से एक दूसरी जगह हुई, वो बच्चे को एडमिशन कराने उसका कोई स्कूल है? नहीं है। मेडिकल है? नहीं है। उसे नॉर्मल उसको सरकारी दफ्तर अस्पताल में जाना पड़ता है। जब वो दादागिरी दिखाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो लोग कहते हैं आज के इतने जो जो सोशल मीडिया से इतने, वो कहते हैं अरे तुम क्या हो, फटाफट फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल के, वो बेचारे थानेदार जी जो हैं वो कल को सस्पेंड और हो जाएँगे। तो ना उनको मेडिकल के सपोर्ट अच्छा है, ना उनके लाइफ सेफ है, ना उनका उनका खाने का टाइम है, ना उनका, आप देखिए अगर आप गौर करेंगे, पुलिस में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, यह बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको पुलिस को और मॉडर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की पुलिस हमारी जो है ये लीगेसी है ब्रिटिश आर्मी की, क्योंकि एंटी पुलि पीपल थी। आज की पुलिस जो है सर्विस ओरिएंटेड है। तो इसको हमको और स्ट्रेंथन और ट्रेन करने की ज़रूरत है। राइट, दे शुड बी ब्रॉट टू क्या बोलते हैं ना, स्कॉटलैंड पुलिस का नाम इतने उससे लेते हैं। तो हमारी जी। पुलिस कम थोड़ी ना, इट्स जस्ट दैट दे नीड मोर मोर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मोर, उनको इनोवेट ज्यादा करने की जरूरत है। जी। टेक्नोलॉजी है, आपके जी। पास वेपन्स है, कंप्यूटराइज करने की जरूरत है सिस्टम्स को, बहुत बहुत कुछ है अब सर। बट बेचारा अब बेचारा वो कौन-सी राइफ़ल लिए घूम रहा है? इंसास, जो सबने छोड़ दी है, और जो किससे डील सामने कर जो रहा है? जिसके पास M5 है। M5 अब और सर एक ये चीज, एक है, कैसे उससे डील करेगा भाई? भिकरू में गए थे ना, भिकरू जो गाँव में हुआ था, वो कौन था? क्या था? कौन दुबे था, क्या था? जिसने पुलिस वालों को ठोका था 9-10 को यूपी में। अभी आप देखो, आप जिन हथियारों के साथ गए, वो AK-47 लिए बैठा था, उसने वहीं से चला दी, ठोक दिया। डीएसपी साहब भी मारे गए, थानेदार 8-9 आदमी मारे गए। तो ये तो बड़ा कॉमन हो गया है। पुलिस का अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी तो ज़रूरत है। एग्री। और इसमें सिर्फ वापस आई थिंक वो पुलिस का आपने नाम लिया, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिंपैथीज विद हिम, इसलिए मैं उधर चली गई। कमिंग बैक, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, 6G वॉरफेयर चाइना का, उसको हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आजकल ऐसे ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम पे सर, आई एम क्वाइट सरप्राइज, मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जो मुझे लगती है वाओ, चाइना इज सच अ ग्रेट कंट्री। मतलब वो देन लाइक ओके, दिस इज गुड। आई मीन we as social media influencers, we see such videos and we get impressed. मैं 6G आपको warfare is आपको actually दो unleashed in India without even us knowing. जी, दो दो 2-3 चाइना के बारे में बढ़िया चीज़ें बताता हूँ। आज की तारीख में 600 शहर चाइना में ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है। 600 सेटलमेंट ऐसे हैं। 33 मिलियन उनके यहाँ एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज़ हैं। नॉर्थ साउथ में पानी का जो है मुश्किल ऐसे ही आ गया है कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो उनकी पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉर्डर एरियाज़ में है, वो कोस्टल एरियाज़ में है। वहाँ पे जितने डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 1 साल में 50,000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं खबर आ रही है? क्या चाइना के हान पॉपुलेशन जो है, क्या वो कोई इनरोड बना पा रही है उइगुर एरिया में? नहीं। क्या वो बना पा रहे हैं तिब्बत के एरिया में? नहीं। विदाउट सपोर्ट वहाँ चल नहीं सकते। हमारे यहाँ तो झंडा लेके चलने लगे, 370 रट गया तो कश्मीर में काफ़ी कुछ समस्याएँ खत्म हो गई हैं। लेकिन वहाँ नहीं है ऐसा। अच्छा, दूसरा, वो जो इन्फ्लुएंस जो ये डाल रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए भी एक आपके कंसर्टेड एफर्ट होना पड़ेगा। आपकी आईटी मिनिस्ट्री वगैरह को
एक नए ढंग से लड़ाई लड़नी, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है भाई। कॉग्निटिव वॉरफेयर इज गोइंग टू बी ए न्यू सेट ऑफ वॉरफेयर, जहां कि आपके माइंड को हैक किया जा रहा है। तो आपको इससे लड़ने के लिए एक नए ढंग से लड़ाई के का एक नया जरिया ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से आप इसको हरा सकते हो। एआई का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको बहुत जरूरी है कि हम लोगों को साइमल्टेनियसली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि ये अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो बहुत कुछ होना है। चाइना इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, इस पे हम लोगों को इस पे जरूरत है। आज आप देखिए कि इंटरनेट इंटरनेट क्या हमको लगता है कि इंटरनेट जो है वो हमारे सपोर्ट के लिए? नहीं जी नहीं, अमेरिका प्रोपेगेंडा मशीन है ये। तो चाइना ने तो अपना बैदुआ बना लिया, तो हम क्यों नहीं अपना बना सकते कि हमारा इंटरनेट हमारा होगा, हमारा एक्स हमारा होगा। तो जिससे कि हम जिसको कि हम एक नया पर्सपेक्टिव दे सके। एंड मैं ये किसी तरह नहीं कह रहा हूं कि हमारे अपने लोगों को इंफॉर्मेशन से आइसोलेट किया जाए, नहीं, सॉरी, नहीं, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये इनका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम इन्फ्लुएंस ना हो, ये एक बहुत बड़ी है चुनौती। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती एक बहुत बड़ी, आप देखिए कि जैसे आपने कश्मीर में कंट्रोल किया तो जम्मू में बढ़ने लगी, जम्मू में एक नए ढंग की लड़ाई शुरू हो गई। पहले फिदाइन अटैक थे, अभी आपके ऊपर जो होने लगे कि वो मार के भागे और जंगल में छुप गए। तो आपको नए ढंग से वहां पे भी जो हथियार मिल रहे हैं वो डिफरेंट हथियार, बिल्कुल मॉडर्न हथियार मिल रहे हैं। आर वी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग? तो आप पिछली लड़ाइयों के लिए नहीं तैयार हो सकते, आपको अगली लड़ाइयों के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए एक थिंक टैंक, एक जो हमारे देश के थिंक टैंक हैं, उनको बैठ के इसके बारे में एक विचार करना होगा। और देयर शुड बी ए मैकेनिज्म जिसमें कि जो आपके एनएसए और बाकी थिंक टैंक के बीच में एक विचारों का आदान प्रदान हो। एनएससी काफी नहीं है, एनएससी सरकारी वो वही बोलेगा जो कि आप सुनना चाहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात बताए, हो सकता है उस बात में कोई दम ना हो, लेकिन इट में स्टिमुलेट योर माइंड टू थिंक डिफरेंटली। तो ये जो 6G वॉरफेयर है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या साइबर वॉरफेयर है, ये एक बहुत मेजर इशू है। और आप देखिए इसमें आप किससे लड़ रहे हो, सोशल मीडिया पे आप किससे लड़ रहे हो, आप जानते ही नहीं हो किससे लड़ रहे हो, किसने कौन सा वो ट्वीट एक शुरू किया और कहां से कहां पहुंच गया, कुछ पता नहीं चलता है। वॉर और इन शैडोज। हाँ, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन सही है कितनी गलत है कुछ पता नहीं चलता है। और आपको ये समझा दिया जाता है कि आप उसमें यकीन करने लगते हो, क्योंकि आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आपका माइंड कई जगह हैक हो चुका है। तो हम लोगों को इसके ऊपर एक बहुत काम करने की एज ए देश जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट व्हाइल वाइंडिंग अप? नहीं, ये आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। मैं सिर्फ हर एक देशवासी से एक ही हमारी दो प्रार्थना है और एक हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूँ, देशवासियों से भी और पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे पहले जरूरी है कि एक देश और सरकार, इसमें फर्क करना शुरू कर देना चाहिए। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम भी नहीं है। और हमसे ज्यादा इस दंश को किसने झेला है? 1000 साल तक। 1192 में हम काबू में आए थे, 1947 से 800 साल तक हम गुलाम रहे हैं। ये एक डूबियस डिस्टिंक्शन है और हमारे चारों तरफ कोशिश हो रही है इस देश को किस तरीके से नीचे किया जाए। तो इन चीजों पे अपने पॉलिटिकल मायोपिया को छोड़ करके हम सबको मिलके, और इसमें सरकार का सबसे पहले उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से एक कंसेंसस बना सकते। दूसरा, एज ए देश हम लोगों को जरूरी ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको 10 स्टेप आगे, आप सचन में कैसे जीतते हो, आप सोचते हो कि भाई वो कौन सी चाल चलेगा, आप वॉर गेमिंग करते हो। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होगा। इसके अलावा हमारे जो वैल्यू सिस्टम है जिसपे कि अटैक वेस्ट से हो रहा है, उसको हम कैसे रोक, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है जो चाइना के पास आज की तारीख में नहीं है, हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम। इसको हम कैसे प्रिजर्व रख सकें, क्योंकि आप अगर देखिए कि आपका जो ये भी पेंडेमिक के टाइम में भी जब आपकी हुआ तो गांवों में कम असर हुआ,
क्योंकि वहाँ फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, वो वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। जबकि शहरों में जहाँ की आइसोलेटेड आदमी बहुत अकेला था, तो बहुत से लोगों ने इवन दे कमिटेड सुसाइड। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ज़रूरी है कि हम आगे के बारे में सोचें, रिसर्च एंड मेथड के ऊपर काफ़ी ज़ोर होना चाहिए और आगे के बारे में हमको ग्रोथ के बारे में बहुत सोचना चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट हैज़ टू डू, हमारा जो भारतवर्ष के ऊपर जो आत्मनिर्भर भारत है, इस पे बहुत ज़ोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इट विल नॉट ओनली जनरेट मोर जॉब्स, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर नोबडी विल बी एबल टू ट्विस्ट आवर आर्म। आज की तारीख में हमारी, आपने देखा है कि कैसे अमेरिका ने आपकी G404 ना देके आपके एलसीए को ग्राउंड कर दिया, प्रोग्राम को। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि हम इन पे बहुत काम करें। नॉर्मल लोगों से मतलब ये है कि ये देश का एक है, एक याद रखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, रश्मि रथी, उसका एक मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, व्याध इज़ हंटर। नहीं, समय समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो हम लोगों को एज़ नॉर्मल इंडियंस भी याद रखना चाहिए कि लड़ाई, ये आज़ादी की लड़ाई हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज़ादी मिल गई है, लेकिन उस आज़ादी को अगर हमें काबू में, अगर उसको प्रिज़र्व करके रखना है, तो हम लोगों को हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब देश का जहाँ तक प्रश्न है, सिर्फ़ ये कहना है कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, सो एंड सो तेरा नाम अमर रहेगा, नहीं। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये देश हमारा है, इस देश के लिए लड़ने मरने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये 2 मैसेज मैं देना चाहूँगा। So very nice. I loved it. Every bit of it. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर है, नहीं तो आप यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट, कमेंट एंड गेट इन टच विद अस, क्योंकि आपका फीडबैक सिस्टम हमें और इम्प्रूव करने के लिए बहुत मदद करता है। It was a fantastic session, sir. I can't thank you enough. Thank you so much once again. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।